are going to study about genetic code and tRNA molecules, right? tRNA molecules as adapter molecules, right? So these two topics we are going to study in this video. So let's start without waiting too long, right? Let's start with genetic code. Now, we know that our body is performing different type of chemical reactions in our body, and sum total of all these reactions are called metabolic reactions, right? Sum total of all these reactions are called metabolic reaction. But these metabolic reactions, most of these metabolic reactions are carried out by proteins, right? Proteins are produced by translation of mRNA molecules, right? They are produced by translation of mRNA molecules, right? Now these proteins are nothing but sequence of amino acids. They are they are long polypeptide chain. They formed by one or more polypeptide chain, and each polypeptide chain is actually sequence of amino acids, right? 100 to thousands of amino acids, right? There are 20 such amino acids which are arranged in a particular sequence. 20 amino acids arranged in particular sequence, right? For each kind of protein, there is a particular sequence of amino acids. Just imagine how many different type of protein can exist with a different type of sequence of 20 amino acids, right? And for each kind of protein, there is a particular sequence. Means if we change a single amino acid from a whole sequence, then the whole protein molecule will get changed. So just imagine how specific sequence of amino acids is in any protein molecule, right? So this protein molecules must be formed from very specific type of polypeptide chain having very specific type of sequence of amino acids. Understood? So how this sequence can be so accurate? The answer is they are produced by translation of mRNA molecules. So mRNA molecules are having nitrogenous base. We know that RNA is produced by reading sequence of DNA. Now how reading sequence of RNA protein molecules can be produced, right? We know that in DNA nitrogenous base sequence are there, right? There are 4 type of sequences, and again these 4 type of sequence except thymine RNA, instead of thymine uracil is present, right? So only with this difference, and obviously deoxyribose and ribose. So with these two differences, from DNA molecule, reading DNA molecule, RNA molecule is been produced, right? But how RNA molecule from RNA molecule, reading RNA molecule, amino acid sequence can be arranged, understood? Obviously, that's why this is called translation. Translation means, when we say translation in day-to-day language, it is conveying message. It is translating message from one language into another. So here also there is a language of nucleotide sequence, base pair sequence, right? And in protein there is language of amino acid sequence. So how this is being converted, that we are going to study in genetic code. Understood? Okay. Now, to study this is not that easier for scientists. So scientists for several different subjects have come. For example, geneticist, biochemist, organic chemist, physicist, scientists from different discipline have joined together and worked for this, right? And among all these scientists, George Gamow have come with very exceptionally good idea, that is how this nitrogenous base is responsible for producing sequence of amino acids, producing particular specific sequence of amino acids in protein, right? तो जॉर्ज गमो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कैसे नाइट्रोजनस बेस से एमिनो एसिड सीक्वेंस का ट्रांसलेशन होता है, राइट? तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि देखो यहाँ पर यू कैन सी इन द डायग्राम गिवन हियर, राइट? देखो अगर 4 नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम लोग ऐसा मान ले कि एक नाइट्रोजनस बेस is coding for just one amino acid, right? One nitrogenous base is coding for one amino acid. तो कितने, how many nitrogenous bases are there? A, G, D, C. और चलो अब RNA से अगर यूज करते हैं तो A, G, U, C 4 nitrogenous base है. Understood? U और T दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है? T और U अगर DNA से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो T, RNA से कंपेयर करेंगे तो U, तो A, G, U, C ले लेते हैं, ठीक है? Let's consider RNA molecules. तो A, U, G, C. अंडरस्टूड? तो अगर एक ही नाइट्रोजनस बेस से एक एमिनो एसिड का कोडिंग होता है,
तो 4 नाइट्रोजनस बेस, 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोड्स के AGUC, तो इससे सिर्फ 4 एमिनो एसिड बनेगा। तो बाकी के 16 एमिनो एसिड्स का क्या? अंडरस्टूड? बाकी के 16 एमिनो एसिड्स का ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो चलो फिर जॉर्ज गमो ने हम लोग को दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी दी कि अगर हम लोग दो कोड, इफ 2 कोड्स, हम लोग नहीं, नेचर, राइट, इन आवर, इट इज अकरिंग इन आवर बॉडी, अगर ऐसा होता होगा कि चलो दो नाइट्रोजनस बेस, pair of nitrogenous base is responsible for or coding for one amino acid, right? If a pair of nitrogenous base is coding for a particular amino acid, right? एक particular pair ले लेते हैं, जैसे कि AG है, UG है, CU है, UC है. You can see in different possibilities in given figure, right? आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो there are 16 ऐसे pairs मिलते हैं हमें, ठीक है? Out of 4 nitrogenous base we are getting 16 such pairs, 16 different pairs, right? तो 16 ही amino acids को कोड कर पाएंगे, तो बाकी के 4 amino acids का क्या? There are 20 amino acids. तो what about remaining 4 amino acids? Understood? तो फिर we have came with another idea that let's consider that triplets, right? Triplets of nitrogenous base is coding for one amino acid, ठीक है? तो this idea is very brilliant because अगर हम लोग triplets लेते हैं तो here अगर triplets लिखते हैं तो जैसे एक सिंगल लिया तो 4 कोड्स हुए, अगर हम लोग कपल्स लेते हैं तो 16 कोड्स हुए, अगर जब हम लोग ट्रिपलेट्स लेते हैं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमें 64 कोड्स मिलेंगे। तो 20 एमिनो एसिड्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना, 64 कोडॉन्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर 20 एमिनो एसिड्स। 20 एमिनो एसिड के लिए 20 चाहिए या तो 64 कोडॉन्स है। अंडरस्टूड? सो दे कैन इजीली कोड फॉर एमिनो एसिड्स। इनफैक्ट एक एमिनो एसिड के लिए ज्यादा कोडॉन्स होंगे ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक एमिनो एसिड के लिए तो 6 है, ठीक है? हाउ लकी द एमिनो एसिड इज, इजंट इट? तो हमारे सीक्वेंस, प्रोटीन के सीक्वेंस में भी आइसोलेशन बहुत बार रिपीट होता होगा, नहीं? आई डोंट नो, ठीक है? तो 6 कोडॉन्स है उसके लिए, मतलब ऐसा चॉइस मिला है जब हम लोग नहीं, ऐसा चॉइसेस मिले हैं बिकॉज triplets are coding, triplets of nitrogenous bases are coding for an amino acid. Understood? For an amino acid. Understood? So this is how coding has been done in our body. Understood? हमारे बॉडी में इस तरीके से कोडिंग होता है। चलो डिस्कवर कैसे हुआ? जॉर्ज गमो ने तो ये आइडिया दे दिया, ठीक है, लेकिन डिस्कवर कैसे हुआ कि भाई यही इसी तरीके से होता है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले 2 साइंटिस्ट आए, एक है निरेनबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट है मैथेई। अंडरस्टूड? ये दोनों साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि दे हैव फॉर्म पॉलीयूरिडिलिक एसिड आरएनए। अंडरस्टूड? मतलब एक ऐसा आरएनए बनाया जिसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस में यूरिडिन ही है। अंडरस्टूड? ओनली यूरासिल ही नाइट्रोजनस बेस है, ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल लिया, राइट? दे हैव मेड such an RNA molecule which is having just यूरासिल in its nitrogenous base। तो देखो यहाँ पर पहले से लेकर लास्ट तक हम लोग देखेंगे तो सिर्फ यूरासिल है। तो यहाँ पर अगर ट्रिपलेट देखेंगे तो यू एवरी टाइम यू है, ठीक है? तो यहाँ अगर ऐसा आरएनए होता है तो इससे जो पेप्टाइड बनेगा, that peptide will be homopolymer of just one amino acid, phenylalanine, क्योंकि U codes for amino acid phenylalanine। तो यहाँ पर पहले से क्या आखिरी तक यू ही ट्रिपलेट है, तो उससे कौन से एमिनो एसिड्स आएंगे? सिर्फ phenylalanine आएगा। तो पूरा पेप्टाइड चेन में सिर्फ एक ही एमिनो एसिड है, phenylalanine। अंडरस्टूड? चलो इसके बाद हमारे इंडिया में से एक साइंटिस्ट आए थे, हरगोविंद सिंह खुराना। तो उन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड का आर्टिफिशियली एक सीक्वेंस बनाया, राइट? अर्लियर देन हिम, मतलब उनसे पहले किसी ने ये चीज नहीं किया था। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाया था, ठीक है? एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाया था, न्यूक्लिक एसिड बनाया था। अंडरस्टूड? शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड बना था वो CU है, ठीक है? अब ये CU है तो उसमें क्या है कि CUC इज कोडिंग। तो ये सीक्वेंस से हम लोग को, ये आरएनए का सीक्वेंस से हम लोग को पता चला कि भाई CUC इज कोडिंग फॉर
ल्यूसीन एंड UCU इज कोडिंग फॉर सेरीन। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर हम लोग को एक एंजाइम ऐसे भी मिला जिसको बोलते हैं सेवेरो-ओशोआ एंजाइम, राइट? इट इज कॉल्ड सेवेरो-ओशोआ एंजाइम। नाउ दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब ये एंजाइम में एक स्पेशल चीज क्या है कि दिस एंजाइम इज नॉट यूजिंग एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, हम लोग ने जब डीएनए रेप्लिकेशन देखा, ट्रांसक्रिप्शन देखा, तो उसमें क्या देखा कि भाई नया स्ट्रैंड जब बनता है, डीएनए हो या आरएनए हो, तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए जिसका कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा, है ना? लेकिन ये एंजाइम ऐसा है विच इज नॉट यूजिंग एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड। विदाउट यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड इट कैन प्रोड्यूस न्यूली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनेगा न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो ये एंजाइम हम लोग ने यूज करके फिर जब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए बनाया और उसमें से फिर जब हम लोग ने कोडिंग पढ़ा तो हम लोग ने पूरा एक चेकर बोर्ड रेडी किया, राइट? यू कैन सी दिस चेकर बोर्ड जहां पर ट्रिपलेट कोडॉन है और हर ट्रिपलेट कोडॉन के लिए कोई ना कोई एमिनो एसिड है। ठीक है, दैट मींस यहां पर एमिनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन, अंडरस्टूड, TYR मतलब टायरोसिन, LEU मतलब ल्यूसीन, अंडरस्टूड, ILE मतलब आइसोल्यूसिन। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा एक चेकर बोर्ड रेडी किया। ठीक है, विच ट्रिपलेट कोडॉन इज coding for which kind of amino acid. Understood? So this is about how genetic code was discovered. Genetic code for each amino acid is discovered, right? So you can observe this table and you can see that different codes are coding for different type of amino acids, right? 64 codes are there which are responsible for coding different amino acids. अंडरस्टूड। तो यहां पर चलो जेनेटिक कोड्स के हम लोग कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये I² है, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड इजियर। अंडरस्टूड। तो ये I²E है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग, इजी एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप पूरा चैप्टर में कुछ लर्न हो या ना हो, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो तो आपको लर्न होना ही चाहिए। अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। तो सबसे पहला कोड का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि दिस कोड्स आर यूनिवर्सल कोड। सबसे पहला है ट्रिपलेट कोडॉन। दिस कोड्स आर ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब हर एक कोड में 3 नाइट्रोजनस बेस होता है। हर एक कोड में 3 नाइट्रोजनस बेस होता है ना? UUU, CUC, ठीक है, फिर UCU, अंडरस्टूड, AUG मिथियोनिन के लिए, अंडरस्टूड। ऐसे हर एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेस के होते हैं जो एक एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करता है। अंडरस्टूड। सेकंड है दे आर यूनिवर्सल। भाई यहां पर देख लो, यूएसए में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कनाडा में देख लो, इजिप्ट में देख लो, सऊदी अरबिया में देख लो। ठीक है, हर जगह पर एक कोड सिर्फ एक ही, मतलब उसका स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए सीक्वेंस करता है। अंडरस्टूड। दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर यूनिवर्सल। अंडरस्टूड। दिस कोडॉन्स, फिर तीसरा है दिस कोडॉन्स आर रीड कंटिन्यूअसली। इसको कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है, कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। अंडरस्टूड। तो ये कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है। अंडरस्टूड। व्हेन इट इज रेड बाय ट्रांसलेशन मशीनरी। ठीक है, पूरा ट्रांसलेशन का कॉम्प्लेक्स, मशीनरी नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, मतलब इसी को रीड करके फिर एमिनो एसिड सीक्वेंस बनता है। तो इट इज रेड कंटिन्यूअसली। अंडरस्टूड। बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है। अंडरस्टूड। तो CUC के बाद AGU है, तो CUC के बाद AGU तो नहीं होगा, चलो CUC के बाद फिर है ACU, तो ACU के बाद है UUR, तो इस UUC, तो इस तरीके से रीड होगा। ठीक है, R नहीं होगा, UUC। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली रीड होगा। अंडरस्टूड। सो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा है इट इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब एक कोडॉन जो है वो सिर्फ कोई एक एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करेगा। ईच कोडॉन will code for a single type of amino acid. Understood? जैसे कि कोई एक ले लेते हैं AUG ले लेते हैं, तो it will code for methionine only. It will code for methionine only. Understood? तो ये एक होता है नॉन एम्बिगुअस कोडॉन। एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आपके लिए अभी छोड़ो एक्सेप्शनल केस, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? फिर है डीजेनरेट कोडॉन। ठीक है, डीजेनरेट कोडॉन। चलो, तो नॉन एम्बिगुअस में हम लोग ने देख लिया कि भाई एक, यहां पर अगर चेकर कोड आप देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, क्या है कि कोई भी अगर एक कोडॉन देख लो तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही एमिनो एसिड है।
अंडरस्टूड। लेकिन एक एमिनो एसिड के लिए एक कोडॉन भी है, किसी किसी एमिनो एसिड के लिए 2 कोडॉन भी है, किसी किसी के लिए 3, 4, 5, 6। अंडरस्टूड। सो व्हाट इट मीन, that means they are degenerate codon, means more than one codon can code for one amino acid, that means they are called degenerate codon। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस है लेकिन degenerate भी है। अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड degenerate codon। अंडरस्टूड। चलो एक स्पेशल टाइप का कोडॉन की बात करते हैं। एक पॉइंट ये है कि देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ कोडॉन, फॉर एग्जांपल AUG। AUG ऐसा कोडॉन है which is responsible for 2 things, that is initiation of translation। AUG codon is responsible for initiation of translation। तो जहां पर भी AUG सीक्वेंस रीड होता है वहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है। Understood। For every mRNA molecule wherever AUG is present, from there translation will initiate। Understood। And this AUG is also code for methionine। AUG is also coding for methionine। तो AUG का dual function है, एक as a start codon, it is also called as start codon because translation initiates from that codon only। तो सब कोई भी पेप्टाइड बनेगा सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सा होगा, methionine, because start codon is each time start codon is the first codon for translation to occur and start codon is coding for methionine। तो हर एक पेप्टाइड में सबसे पहला एमिनो एसिड जो होगा वो methionine होगा। अंडरस्टूड। unless it is splitted out। understood। अगर वो एमिनो एसिड में, अगर वो पॉलीपेप्टाइड में स्प्लिटिंग नहीं हुआ है तो पहला एमिनो एसिड मेथियोनिन ही होगा। अंडरस्टूड। कोई भी पॉलीपेप्टाइड। अंडरस्टूड। इफ इट इज नॉट कटेड। अंडरस्टूड। ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आएगा तो देयर आर सम स्टॉप कोडॉन्स आल्सो। अगर आप चेकर बोर्ड में देखोगे तो 3 कोडॉन्स ऐसे हैं विच आर कोडिंग फॉर नो एमिनो एसिड्स, which are, I mean, वो 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते हैं। They are called stop codons। Understood। They are called stop codons। जैसे UAA चेक कर लीजिए, UAG, UGA देख लीजिए, they are coding as stop codons। ठीक है, वो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते। So they are called stop codons। Understood। And last one is non-overlapping codons। कोई भी जब भी रीड किया जाता है तो एक कोड खत्म होता है, उसके बाद दूसरा कोड स्टार्ट होता है, फिर वो खत्म होता है, मतलब 3 है तो उसके बाद 3 है, उसके बाद तीसरे 3 है। अंडरस्टूड। दे आर नॉट ओवरलैपिंग, मतलब ये 3 है तो यहां से फिर दूसरा स्टार्ट हो गया या यहां से फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं, ये पूरा खत्म हो गया फिर दूसरा यहां से स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड। दिस 3 विल कोड फॉर अनदर एमिनो एसिड। फिर इसके बाद जो 3 उसके बाद वाला जो 3 है वो इट इज कोडिंग, इट विल कोड फॉर अदर एमिनो एसिड। Understood। So here overlapping is not there। Understood। They are non-overlapping codons। Understood। These are the points for genetic codons। Understood। हमारे बुक में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। I have explained you 8, right। तो आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना कौन से नहीं है और उस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। एक लीनियर पैरेललिज्म के लिए दिया है, दैट इज अबाउट लीनियर पैरेललिज्म मतलब कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड। कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड। कॉमालेस कंटिन्यूअस जो बोलो या लीनियर पैरेललिज्म बोलो। अंडरस्टूड। जैसा जैसा नाइट्रोजनस बेस के ट्रिपलेट कोडॉन्स का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे फिर और जैसे हमारे डीएनए में और आरएनए में 5' एंड इज स्टार्टिंग एंड और 3' एंड इज मतलब वो लास्ट एंड है। अंडरस्टूड। वैसे यहाँ पर एंड टर्मिनल होता है, वो बिगिनिंग एंड होता है और सी टर्मिनल इज द लास्ट एंड। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से पेप्टाइड में एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। अंडरस्टूड। तो क्योंकि इस यहाँ पर भी पहला एमिनो एसिड का NH2 है वो फ्री है, एमिनो ग्रुप इज फ्री, एंड लास्ट एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। दैट्स व्हाई एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। अंडरस्टूड। ओके। सो दिस इज अबाउट हाउ कोडिंग इज बीन डन। अंडरस्टूड। ट्रांसलेशन तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि कैसे जेनेटिक कोडॉन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चलो जेनेटिक कोड और म्यूटेशन का क्या रिलेशन है। अंडरस्टूड। तो यहां पर अगर आप फिगर में देख सकते हो कि सपोज यहां अगर कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, कोई एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, उसमें अगर मैं बीच में से एक एमिनो एसिड एक नाइट्रोजनस बेस निकाल देता हूं तो जो ट्रिपलेट कोडॉन का फ्रेम है वो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। और फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो जहां से वो निकला है,
अंडरस्टूड, डिलीशन, एक नाइट्रोजनस बेस का सिर्फ डिलीशन हुआ है या फिर इंसर्शन हुआ है, अंडरस्टूड, ईदर वन इज डिलीटेड और वन नाइट्रोजनस बेस इज इंसर्टेड, एक डिलीट हुआ या इंसर्ट हुआ है, तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब जहां पर ये इंसर्ट और डिलीट हुआ है उसके बाद सारे एमिनो एसिड्स अलग हो गए, बिकॉज यहां पर फ्रेम शिफ्ट हो गया, तो जो नाइट्रोजनस बेस एक फ्रेम की तरह लिया जाता था, अभी वो फ्रेम पूरा शिफ्ट हो चुका है, अंडरस्टूड, यू कैन सी इट ओवर हियर, अंडरस्टूड। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखो सिर्फ बाय एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ सिंगल बेस पेयर, दिस मच बिग डिफरेंस कैन अकर, अंडरस्टूड। फिर दूसरा ये है कि इवन अगर चलो पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोई एक चीज, कोई एक बेस पेयर का एक्सचेंज हो गया है, ठीक है, कोई एक बेस पेयर बदल गया है, ठीक है, जैसे कि एक डिजीज आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ी है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसमें GAG था विच इज कोडिंग फॉर वेलिन, नाउ GUG इज देयर विच इज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो जहां पर वेलिन होना चाहिए था वहां पर ग्लूटामिक एसिड है। अब सिर्फ एक पूरे पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 to 1000 एमिनो एसिड्स होते हैं और मे बी मोर देन दैट, उसमें एक एमिनो एसिड सिर्फ बदल गया तो बंदे को हो गया सिकल सेल एनीमिया। Just imagine how accurate they must be. Understood? So a single small change like this can bring a very big change in an individual. Understood? And this is how genetic disorders are occurring. Understood? तो they should be very accurate. तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन भी ऑब्वियसली, तो ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, है ना, isn't it? तो दिस इज हाउ जेनेटिक कोड में थोड़ा भी चेंज आया, अगर कुछ भी म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक कोड चेंज हो गया, तो पूरा एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी ऐसे इस तरीके से चेंज हो जाता है, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस अबाउट जेनेटिक कोड। नाउ लेट्स मूव टू द टीआरएनए मॉलिक्यूल। नाउ व्हाई टीआरएनए मॉलिक्यूल इज सो इंपॉर्टेंट। हम लोग ने देखो एमआरएनए में इतना नहीं पढ़ा, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट राइबोसोमल आरएनए इवन, हम लोग तो राइबोसोमल आरएनए पढ़ने ही नहीं वाले हैं। एमआरएनए में कुछ तो जानते हैं कि भाई स्प्लाइसिंग हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, उसका स्प्लाइसिंग कैपिंग एंडिंग होता है, तब जाके एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए में पॉलीसिस्टोनिक यूनिट होता है या मोनोसिस्टोनिक यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज आरएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इतना तो हम लोग ने पढ़ा है एमआरएनए के बारे में, ठीक है। आरआरएनए के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। एमआरएनए के बारे में इसलिए पढ़ा है बिकॉज एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और उसमें से एमिनो एसिड का सीक्वेंस रेडी होता है, अंडरस्टूड। एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन होता है, रेडी नहीं, डिटरमाइन होता है, अंडरस्टूड। तो ये तो हम लोग को मालूम है, तो इसीलिए एमआरएनए के बारे में हम लोग ने थोड़ा पढ़ा। लेकिन टीआरएनए क्यों पढ़ते हैं? अब जब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, यू विल गेट टू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आर। These molecules are also called adapter molecules. ये molecules को adapter molecules बोलते हैं, ये याद रख लेना, इसको adapter molecules बोलते हैं, ठीक है। Just remember this. Why it is called adapter molecule? क्योंकि ये molecule है जो amino acid को लेके आते हैं। जो हम लोग ने चेकर बोर्ड में सारे amino acids के कोडॉन्स पढ़े हैं, तो हमारे बॉडी में कौन सा molecule है जिसको ये चेकर बोर्ड पूरा याद है? That is tRNAs. Understood? अलग अलग tRNAs होते हैं जिनको ये चेकर बोर्ड पूरा याद है, अंडरस्टूड। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं ये आप समझ जाओगे जब हम लोग टीआरएनए कंप्लीट कर लेंगे, अंडरस्टूड। ये टीआरएनए में हम लोग स्ट्रक्चर पहले समझ लेंगे, बाद में हम लोग समझ लेंगे कि हाउ दिस टीआरएनए मॉलिक्यूल इज एडेप्टर मॉलिक्यूल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, अंडरस्टूड। और ये याद रखता है, कैसे याद रखता है ये भी हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। These molecules were discovered by Francis Crick, the same scientist who have participated in finding structure of DNA molecule, right? Double helix structure of DNA molecule have contributed, right? Watson, Crick. तो यही फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने DNA molecule डिस्कवर किया था। They are also called as soluble RNA molecules, right? They have a higher existence in cytoplasm, ठीक है। RNA जब राइबोसोमल RNA मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होके ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, बाहर इनका ट्रांसलेशन होता है जिसमें से एमिनो एसिड का सीक्वेंस बनता है और एमआरएनए फिर डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं एंजाइम से। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स ये एमआरएनए और आरएनए के बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं which are much more stable than messenger RNA but not as much as ribosomal RNA, understood? So they are much more stable than messenger RNA.
और कुछ 60 टाइप के अमीनो 60 टाइप के टीआरएनएस होते हैं हमारे बॉडी में। 60 टाइप के हमारे सेल्स में 60 टाइप्स ऑफ टीआरएनएस आर देयर। अंडरस्टूड। अब ये टीआरएनए का अगर हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ वी सी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, हाँ जैसे प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, वैसे यहाँ पर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलीमरिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन में एक या एक से ज्यादा पॉलीमरिक चेन होते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलीमरिक चेन है, इसलिए यहाँ पर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर का जब हम लोग शेप देखते हैं ना, तो इट इज ऑफ इन्वर्टेड एल शेप। यू कैन सी दैट इन फिगर, राइट? इट इज इन्वर्टेड एल शेप। अंडरस्टूड। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का फोल्डिंग्स अगर हम लोग सीधा कर दे, ठीक है, तो ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। वी कैन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। एंड इट इज क्लवर लीफ शेप। इट इज क्लवर लीफ शेप। अंडरस्टूड। क्लवर लीफ शेप का होता है जिसमें 3 लूप होते हैं। अंडरस्टूड। इट हैव 4 लूप्स, नॉट 3, इट हैव 4 लूप्स। अंडरस्टूड। तो ये 4 लूप्स होते हैं और एक एंड होता है, और एक ऐसा एंड होता है जहां पर 5' एंड 3' एंड दोनों होता है। अंडरस्टूड। तो यहां पर अभी टीआरएनए मॉलिक्यूल आप अगर फिगर देखो, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, आप डोंट वरी, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉट देयर इन आवर टेक्स्ट बुक, बट आपको समझने के लिए ये टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना चाहिए। I think that you should see this structure to understand TRNA molecules very clearly. Understood? यहाँ पर देखो, जितना आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोलूं ना उतना आप समझ लो, ठीक है। देखो पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 आर्म्स जैसे स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग जहां पर 5' एंड और 3' एंड है, जहां पर लूप नहीं है, वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो 5' एंड है, वहां पर होता है गुएनोसाइन रेसिड्यूज, ठीक है, वहां पर गुएनोसाइन रेसिड्यूज होते हैं एट दी 5' एंड, ठीक है। फिर जहां से 5' एंड से अगर स्टार्ट करें तो उससे वो आर्म के बाद जो पहला आर्म आता है, अंडरस्टूड, आफ्टर दैट आर्म द फर्स्ट आर्म विच कम्स नियर द 5' एंड, तो ये एंड को हम लोग बोलते हैं DH। अच्छा, ये आर्म में जो एक लूप होता है, ये लूप को हम लोग बोलते हैं DHU लूप। Understood? This loop is called DHU loop, dihydroxyuridine loop। फिर आगे जाते हैं तो एंटीकोडॉन लूप आता है, ठीक है। फिर आगे एंटीकोडॉन लूप आता है। Understood? This एंटीकोडॉन लूप is having कुछ इसमें 7 अनपेयर्ड बेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें 7 अनपेयर्ड बेसेस होते हैं एंटीकोडॉन लूप में। और एंटीकोडॉन लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, इंटरेस्टिंग लूप। अंडरस्टूड? फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल लूप आता है। इसको वेरिएबल लूप इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वेरी इन देयर साइज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस आल्सो। अंडरस्टूड? तो इसको वेरिएबल लूप बोलते हैं। एंड देन लास्ट लूप विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लूप फ्रॉम 3' एंड। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली 5' एंड से जो लास्ट होगा वो 3' एंड से फर्स्ट होगा। अंडरस्टूड? तो जो 3' एंड से फर्स्ट लूप है दैट इज कॉल्ड T-Psi लूप। अंडरस्टूड? तो ये लूप है, यहां पर भी 7 अनपेयर्ड बेसेस है। इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 7 अनपेयर्ड बेसेस। अंडरस्टूड? अब ये लूप है वो 3' एंड से फर्स्ट लूप है और 5' एंड से लास्ट लूप है। अंडरस्टूड? चलो अब आ जाते हैं 3' एंड में क्या है। 3' एंड में लास्ट जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं दे आर CAA। अंडरस्टूड? हर टीआरएनए मॉलिक्यूल में CAA आर द लास्ट नाइट्रोजनस बेसेस। अंडरस्टूड? और इसके बाद एक एमिनो एसिड होता है। अंडरस्टूड? ये एमिनो एसिड भी कब होता है? इसमें भी 2 टाइप के टीआरएनए होते हैं, एक जिसमें एमिनो एसिड होता है और एक जिसमें एमिनो एसिड नहीं होता है। मतलब एक one टीआरएनए मॉलिक्यूल which ends at CCA and another molecule which ends with amino acid। अंडरस्टूड? मतलब CCA तो है, उसके बाद एमिनो एसिड का एमिनो एसिड भी है। अंडरस्टूड? एंड गेट एंड विद एमिनो एसिड। अब ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज वेदर इट इज चार्ज टीएनए और अनचार्ज टीएनए। तो जो अनचार्ज टीएनए है उसमें एमिनो एसिड नहीं होता है, और जो चार्ज टीएनए है उसमें एमिनो एसिड होता है। क्योंकि चार्ज इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एमिनो एसिड लगाने के लिए एटीपी यूज हो जाता है। तो एटीपी यूज हो गया है यहाँ पर, तो एमिनो एसिड लगेगा। अंडरस्टूड? तो एमिनो एसिड लगा हुआ है।
तो मतलब एटीपी का एनर्जी इसमें आ गया है, तो ये चार्ज हो गया है. अंडरस्टूड? इट इज ऑलरेडी चार्ज बिकॉज इट हैव टेकन एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड देयरफॉर एमिनो एसिड हैज बाइंड टू द 3' एंड ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? और अगर एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी नहीं मिला है तो एमिनो एसिड बाइंड नहीं हुआ होगा. अंडरस्टूड? तो इस टाइप के टीआरएनए जिसमें एमिनो एसिड नहीं है उसको अनचार्ज्ड टीआरएनए बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट इज चलो लूप्स तो हम लोग ने देख लिए. अब ये एंटीकोडॉन लूप है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट है. क्यों सिग्निफिकेंट है? विच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज, आई मीन एंटीकोडॉन आर्म में हम लोग ने देखा ना 7 अनपेयर्ड बेस होते हैं, उसमें भी 3 जो अनपेयर्ड बेसेस है इट इज फॉर्मिंग एंटीकोडॉन, आई मीन इट इज फॉर्मिंग एंटीकोड. अंडरस्टूड? इट इज फॉर्मिंग एंटीकोडॉन ट्रिपलेट. अंडरस्टूड? और यही एंटीकोडॉन ट्रिपलेट होता है ना, वो एक्चुअली उसको एंटीकोडॉन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन, आई मीन ट्रिपलेट कोडॉन. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रिपलेट कोडॉन. अंडरस्टूड? एक आरएनए मॉलिक्यूल, जब आरएनए मॉलिक्यूल में से जब एमिनो एसिड्स को लेके हम लोग पेप्टाइड, हम लोग नहीं, जब यहाँ पर पेप्टाइड बनता है, अंडरस्टूड, व्हेन ट्रांसलेशन इज अकरिंग रीडिंग दिस एमआरएनए मॉलिक्यूल, तो ये टीआरएनए मॉलिक्यूल आके एमआरएनए पे बाइंड होता है. कैसे बाइंड होता है? जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट्री लूप आया, जैसे कोई एक ट्रिपलेट कोडॉन है AUG, फर्स्ट कोडॉन, ठीक है, AUG, तो इसमें ऐसा टीआरएनए आके बाइंड होगा जिसका एंटीकोडॉन आर्म में एंटीकोड कौन सा होगा? एंटीकोडॉन ट्रिपलेट कौन सा होगा? AUG है तो UAC. अंडरस्टूड? तो UAC एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए यहां पर आके बाइंड हो जाएगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना? आप लोग फिगर में देख सकते हो AUG एंड UAC आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है. और ये जो टीआरएनए होगा उसमें और कोई एमिनो एसिड नहीं, सिर्फ मिथ्योनिन एमिनो एसिड होगा. अंडरस्टूड? नो एल्स एमिनो एसिड इज देयर बट मिथ्योनिन. अंडरस्टूड? तो देखो पता चला आपको कि जो टीआरएनए के पास जिस तरीके का एंटीकोडॉन है उस तरीके का एमिनो एसिड है. अंडरस्टूड? जैसे अगर कोई एमिनो एसिड के पास, कोई टीआरएनए के पास अगर ल्यूसीन करके एमिनो एसिड है, ठीक है, ल्यूसीन एमिनो एसिड है, तो उसमें एंटीकोडॉन कौन सा होगा? GAG. क्या होगा एंटीकोडॉन? GAG. क्यों? क्योंकि ल्यूसीन का ट्रिपलेट कोडॉन कौन सा होता है? CUC. अंडरस्टूड? और CUC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? GAG. अंडरस्टूड? तो CUC का कॉम्प्लीमेंट्री GAG है, तो GAG विल बी एंटीकोडॉन ट्रिपलेट. ये एंटीकोडॉन ट्रिपलेट कहां पर होगा? वो टीआरएनए में होगा जो टीआरएनए में एमिनो एसिड ल्यूसीन होता है. अंडरस्टूड? तो ये पहले मालूम नहीं था. अगर पहले मालूम होता ना तो टीआरएनए को ही पढ़ के टीआरएनए में एमिनो एंटीकोडॉन नाम कौन सा है वही देख के हम लोग एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कौन सा है वही देख के हम लोग को पता चल जाता है ना, पूरा चेकर बोर्ड बना देते हैं ना. CH ओशो एंजाइम यूज नहीं करना पड़ता, isn't it? कि भाई चलो एंटीकोडॉन नाम कौन सा है तो उस हिसाब से कोड हम लोग लिख देते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन उसका कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके लिए एमिनो एसिड टीआरएनए में कौन सा एमिनो एसिड है वो लिख दो, isn't it? लेकिन उस टाइम पे मालूम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये सारे एंजाइम्स यूज किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे पैसे फंड यूज किया, और फिर उन्होंने ये चेकर बोर्ड, जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड बनाया. अंडरस्टूड? So understood about tRNA. Why I have said that tRNA molecule have learned whole checkerboard of genetic codon, right? It is knowing which genetic code is responsible for which kind of amino acid. Understood? तो tRNA molecules में ये एक्चुअली बिकॉज हम पता चला ना अभी कि क्यों ऐसा है, क्योंकि उसका जो एंटीकोडॉन होगा उस हिसाब से उसमें एमिनो एसिड होगा. Understood? So this is about tRNA molecules and why they are called adapted molecules, because they are bringing amino acid, right? They are bringing different amino acid for the different triplet codon of mRNA molecules. Understood? इसलिए उनको adapted molecule बोलते हैं. Okay, so this is about genetic code and tRNA. तो इतना ही है genetic code और tRNA के लिए. If you have any question, you can ask me in comment. If you like the video, आपको कुछ भी है अगर बताना है नहीं बताना है, आप बताना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो. आई रियली वांट योर कमेंट्स. अंडरस्टूड? और अगर आप एक छोटा सा एनिमेशन देखना चाहते हो तो मैंने लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का ही एनिमेशन दिया हुआ है वेरी शॉर्ट में.
तो आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ ट्रांसलेशन, अंडरस्टूड, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ ट्रांसलेशन, नेक्स्ट वीडियो